92% गिवन पर मैं हूं खुर्रा बदरुद्दीन और आज बिग स्पॉटलाइट में मेरे साथ एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत फेम हासिल किया है, लेकिन ये फेम रातों रात नहीं मिला. He's worked hard for it. I've got the CEO and founder of Magnan Group, Magnan EG Plus and Magnan TBWA. इन सब कंपनियों को आप जानते हैं. मेरे साथ आज है कौन? विनीत बाजपेयी जी. विनीत, गुड मॉर्निंग. Hi Nitin, thank you very much for having me on the show. विनीत, पहले तो मुझे बताइए, जो लॉकडाउन का अब तो अनलॉक 1.0 चल रहा है, एक तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया इसके वर्जन के नाम क्यों रखे. समझ नहीं आता कि ये लॉकडाउन है या मोबाइल का नया वर्जन है, कोई एंड्रॉइड का पीछे है. पर 5.0 लॉकडाउन चल रहा है, 1.0 अनलॉक चल रहा है. तो आपके लिए पूरा जो पीरियड रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन, हाउ इज इट बीन? हैज इट रियली चेंज्ड यू एज अ पर्सन? आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए? यार शुरू में तो बहुत प्रोफाउंड चेंजेस आए बिकॉज जब मुझसे कोई पूछा करता था कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू डू, तो मैं भी थोड़ी सी वो टोनी स्टार्क वाले एटीट्यूड में, ह्यूमर में बोलता था यार कार्स एंड कलोन, वॉचेस एंड वॉचेस. पर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, ना कार किसी काम की रही ना कलोन. The first few days, like everybody else, we were just trying to find our feet at work. We were just trying to find our feet at home. The new reality of being at home all the time. Your company is known as India's fastest growing digital agency. आपके इतने सारे clients हैं. You work with so many clients, right from Nestle onwards. पता नहीं कितने clients आए. मतलब अगर मैं लिस्ट निकालूं तो शायद हमें 2 घंटे का शो पे करना पड़ेगा. But because you'll be interacting with most of these people. Now what has happened during the pandemic is कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई है. Let's face it. गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि no one should lose their jobs. लेकिन as a business also लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी. They had no option but to let go of people. With a heavy heart they did that. So how has your company been coping with it? We are amongst the top 10 advertising groups in the country. और जैसा आपने बोला, we are very fortunate. We are working with some of the biggest names in the world. In fact, Fortune 100 list में से 7 names are our clients. Wow. Fortune 2 companies में से 2 brands are our clients. So we are working with the biggest brands in the world. थोड़ा हम fortunate इस मामले में रहे हैं that हमारे जितने भी clients हैं वो बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, एयरलाइंस हो, रिटेल हो, फॉर्चुनेटली वहां से नहीं है. So the impact has not been as harsh on us as it has been. That at Magnon Group we have not downsized even a single person. There has not been any kind of a pay cut or furlough. We are more than 300 people across Delhi, Bombay, and Bangalore, and we have we've been able to see this time through with great productivity, and our clients have been equally generous. पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा 300 लोग से ज्यादा, जैसे आपने कहा कि 3 सिटीज में आपके हैं. So how has it been interacting with them, keeping them motivated? ऑनलाइन वगैरह सब कुछ चल रहा होगा, but anything that you want to tell us about? कैसे कर रहे हैं आप उनको मोटिवेट? Like I said, the power of people amazes me. And I have observed it firsthand with the 300 plus people that work in our company, and another 50-60 people who work with Talent Track. That people, their ability to adapt, their ability to leverage their passion, their ability to be able to extend their skill set irrespective of the medium they are operating on is phenomenal. और मैं आपको बताऊं कि मैं देखता हूं जिस तरह से अब क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, शायद वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही हैं. जिस तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं, आई कैन मेक आउट that not even one of them is really trying to shortchange the company or the client, and everybody is plugged in. Because आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, and rightly as you said, in the top 10 मैं तो कहूँगा top 5 में होगी, लेकिन क्योंकि डिजिटल एस्पेक्ट उसका जो है बहुत बड़ा है. डू यू थिंक अब जो कोविड का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक के दौरान, जैसा आपने कहा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सो डू यू थिंक दैट द कमिंग एरा इज rightly being called the digital era now? How do you think things are going to change now? Nitin, I think there is no doubt about that. And much as I respect conventions, and much as I respect the traditional way of operating, whether it is in terms of media, in terms of industry, in terms of any field of work, but the reality is that the digital era is here. As a company, आपने जैसे बोला हमारा काम ही है ये, तो हमने पिछले 20 साल में, we celebrate 20 years this year, हमने पिछले 20 साल में आई थिंक सैकड़ों कंपनीज और ब्रांड्स का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया. जो बिल्कुल ही मॉम एंड पॉप शॉप्स, जो बिल्कुल ही जो ब्रिक एंड मोर्टर कंपनीज थी, हम उनको इंटरनेट पर लेकर आए. और जिस तरह मैं देखता हूँ आज के जो मिलेनियल्स हैं, वो सारा का सारा कंटेंट अपना आज डिजिटल मीडियम पे कंज्यूम कर रहे हैं. तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि आर वी द लास्ट न्यूज़पेपर रीडिंग जनरेशन, क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूँ इससे नेक्स्ट जनरेशन के यंगस्टर्स को अखबार निकाल के पढ़ते समय. आई थिंक डिजिटल इज हियर, एंड वी बेटर गेट
ready for that change. मैग्नोन और टैलेंट ट्रैक आपकी दोनों कंपनीज बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बट इस कोविड-19 के टाइम पर आर देयर एनी इनिशिएटिव्स दैट यू टेकन अप दैट यू वांट टू टेल अस अबाउट? We realize that our greatest contribution to the economy and to the society right now would be if we keep our company going, we keep our productivity on, and we keep our employees, fully paid and well employed. So we decided that हम अपना फोकस अपनी कंपनी को कंटिन्यू करने में जरूर लगाएंगे, लेकिन हम साथ में जुड़े एज अ कंपनी वी हैव, और मैं कोई ये किसी कोई बहुत सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारी बस एक ड्यूटी रही है, लेकिन एज अ कंपनी हमने पीएम केयर्स फंड में और प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में हैवी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. एज अ कंपनी वी कम टुगेदर, सभी एम्प्लॉइज ने, कोई 50 रुपए कटा रहा है, कोई 5,000 कटा रहा है, लेकिन सभी एक साथ जुड़े हैं और सब लोग एक कोविड फंड प्रिपेयर करते हैं हर महीने, जिसको हम अगेन पीएम केयर्स फंड में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं. मैंने जितना आपके बारे में सुना है इंडस्ट्री में, पीपल से दैट यू आर अ पावर हाउस एंड यू फुल ऑफ एनर्जी, एंड पीपल लव वर्किंग विद यू. तो एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस, द आइडिया ऑफ डूइंग बिग स्पॉटलाइट इज कि लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, जो लोग आपकी तरह आना चाहते हैं फील्ड में, जो लोग आपको हु थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन, पीपल लाइक मी आल्सो, वी वांट टू लर्न फ्रॉम दिस. तो what is that one thing that you think is the toughest which you encountered while you were rising up, and once you got where you wanted to, I'm sure आप और आगे जाना चाहेंगे, भगवान की दया से और आगे जाएंगे, पर जहां आप पहुंच गए तो अब आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? एक तो ऊपर आते हुए when you were rising, what was the toughest thing that you faced, the toughest challenge, and now what is your toughest challenge? कई बार ऐसा होता है हम लोग, और मैं बहुत जगह बोलने अब तो उतना नहीं जाता हूँ, पर पहले बहुत सारे बी स्कूल्स में CII, FICCI, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की में जाता था मैं. आई यूज्ड टू शेयर एंड स्पीक. तो वहां पे भी मैं एक बात यही हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है या एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपनी नौकरी मेंटेन रखो और साइड बिजनेस एक शुरू करते हैं, और अगर चल गया तो चल गया, वरना अपनी नौकरी तो है ही. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में उतरते हैं तो आप उन लोगों से compete कर रहे हैं जिनका सब कुछ, जिनका पूरा अस्तित्व अपने इस ड्रीम से जुड़ा होता है. तो अगर आपको ये लगता है कि आप उसको एक साइड बिजनेस की तरह करके उनसे टकरा लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. पर इसमें सवाल आता है कि फिर कैसे करना है, क्योंकि जब आप एक करियर शुरू करते हैं तो जितनी मुसीबतें आती हैं, सबसे बड़ी चीज होती है जो सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस कर देती है, वो है परसिवरेंस. कई लोग हैं जो एक ही जगह से शुरू करते हैं, 2-4 साल बिताते हैं. कुछ लोग हैं जो मुश्किलें आती हैं, and the issues and the problems that they face, they are able to face them and continue, and the others leave the race. तो मेरे हिसाब से while you are rising and while your first days of success is something that you're chasing, I think the ability to stick to your course, the ability to burn all your other bridges and face whatever comes in your path and still sticking to your guns, I think ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. और मेरे हिसाब से यही डिफरेंस होता है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए. अगर आप देखिए तो अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 5 साल एक्टिंग ट्राई करी होती और छोड़ दी होती, तो शायद आज वो गैंग्स ऑफ वसीपुर के सुपरस्टार नहीं होते. तो वही चीज हर जगह आती है, एंड आई थिंक परसिवरेंस वाज एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो सुनने में आसान लगती है लेकिन एग्जीक्यूट करने में बहुत मुश्किल होती है. तो जैसा मैंने कहा कि अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर ली है, लेकिन जो भी अभी तक अचीवमेंट हुआ है, अब ऐसा हो गया है कि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत हाई हो गया है. तो बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम. एवरी स्टेज, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम ब्लेस्ड विद, एंड आई थिंक ऑल पीपल हु आर एबल टू अचीव समथिंग इन लाइफ इज द एबिलिटी टू really enjoy every phase, every stage along with whatever it brings. But such a pleasure speaking with you, और I'm sure कि जितने भी लोगों ने देखा है, जो भी सुन रहे हैं, they will be so inspired because you know that the way you've come up also in life, you started from scratch, और ये जो भी आपने आज शोहरत हासिल की है, आपने बहुत मेहनत मुशक्कत से की है, and I'm sure कि आपकी बातों की वजह से ऐसे लोग तो इंस्पायर होंगे जो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ढूंढ रहे हैं. But you've also served as an example for people today जो कि companies run कर रहे हैं, because आपकी बातें सुन के I'm sure they will realize that yes, the company needs to stand by their employees. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए.